اور القدس کے نام میں آج شام راوالی عیسیٰ نگری کی اس کلیسیا میں جتنے بھی لوگ اس خیمے میں اس اجتماع میں موجود ہیں، میرے بزرگا بھائی بہن بیٹے بیٹی اور ہم خدمت ساتھیوں کو میرا سلام۔ شکریہ، آپ نے میرے بہت سارے ٹائٹل نہیں بتائے اور ہے بھی نہیں۔ میں خداوند کا، انہوں نے کہا خدا کے عظیم خادم، تو کسی سے سیکھا میں نے اور مجھے وہ کہنا بتانا اچھا لگتا ہے۔ ہمارا خدا عظیم خدا ہے، ہلیلویہ۔ ہم عظیم خدا کے ادنا خادم ہیں۔ خداوند عظیم ہے اور ہم اس کے ادنا خادم ہیں، سو خداوند کا شکر۔ میں شکر گزار ہوں اپنے پاسٹر صاحب کا، ایلڈر صاحب کا اور اس کنونشن کی جو انتظامیہ ہے۔ آپ ہمیشہ مجھے یاد کرتے ہیں اور یہ میرا شاید چوتھا پانچواں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے عبادتی پروگرام جو اٹینڈ بھی کیا اور خدا کے کلام کو بھی پیش کروں گا۔ میں خداوند کا دل سے شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یاد کیا۔ آج شام خاص طور پر جو حوالہ رکھا گیا اور جو مضمون رکھا گیا، میں جلدی سے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ مگر یہ جو تین ننھے ستارے تھے، اسٹیفنس آشر، یہ طبلہ بجا رہے تھے، سلویا آشر، یہ دونوں بہن بھائی ہیں نا، اور زکی جان، بہت اچھا آپ نے پرفارم کیا۔ میری دعا ہے خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آپ کی کلیسیا پہلے ہی بابرکت کلیسیا ہے، اچھی کوائر ہے، نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں، یہ خوشی کی بات ہے۔ خداوند میں ترقی کرتے چلے جائیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کی آیت بھی اسی مضمون کے متعلق ہے۔ جو مضمون رکھا گیا ہے شکر گزاری، ایک لمبا مضمون بنتا ہے، لیکن میں ایک خاص ٹکڑے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیسے صحیح ہو گئی ہے؟ لمبا مضمون ہے شکر گزار۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ آخری وقت میں لوگوں میں جو برائی پائی جائے گی، تimotheus میں لکھا ہے تیسرے باب میں، ان میں ایک برائی یہ ہوگی کہ لوگ نا شکر ہوں گے۔ یہ بائبل کا بتانا۔ اور تimotheus میں جب یہ خط پالوس نے لکھا اپنے فرزند، اپنے خادم کو، تو اس نے بتایا کہ یہ مسئلہ مسائل کلیسیا کے بیچ میں ہوگا۔ ہاں، دنیا میں تو ہوگا، لیکن وہ تimotheus کی جتنی بھی باتیں وہاں پر لکھی ہیں وہ کلیسیا کے مسائل ہیں۔ سو یہ کلیسیاؤں میں ایمانداروں کے بیچ میں ایک مسئلہ ہے، وہاں لکھا ہے کہ لوگ نا شکر ہوں گے۔ اس کی بیس کرنا۔ سو سوال ہے آپ سے، سوال ہے مجھ سے کہ میں کس طرح کا ایماندار ہوں؟ کیا میں خدا کا شکر گزار ہوں؟ ہم کہتے ہیں نا، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم شکر گزاری سے شروع کرتے ہیں، یہ صحیح ہے، لیکن کیا ہم حقیقی معنوں میں شکر گزار ہیں؟ کہاں جا کر صحیح شکر گزاری شروع ہوتی ہے اور کہاں جا کے وہ صرف لفظی ہوتی ہے اور وہ روایتی ہوتی ہے، کیونکہ ہم وہ دعا میں کہتے ہیں اور کئی دفعہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں سوچ رہے ہوتے۔ سو حقیقی شکر گزاری کیسے ہوتی ہے؟ وہ چھوٹی سی مثال بتانا چاہتا ہوں، سچی زندہ آپ بیتی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے ابھی خدمت کے لیے، میں اور میرا خاندان پشاور میں پہنچا۔ پشاور پہلا علاقہ تھا، فیلڈ تھی جہاں میں خدمت کے لیے پہنچا۔ تو جب میں وہاں پہنچا، چونکہ میں نے سیمنری ختم کی تھی، تو ابھی ہم پہنچے ہی تھے ایک خاص علاقے میں، اور وہ وقت تھا جب ہم لوگوں سے ملتے، لوگ ہمارے پاس آتے، تو کئی چیزیں تھیں جو ہمارے پاس ابھی نہیں تھی۔ ان میں سے ایک چیز جس کی بہت کمی محسوس ہوتی تھی وہ تھا فریج، ریفریجریٹر، فریج۔ کیونکہ لوگ آئیں، آپ ان کی خدمت کریں، ان کو ٹھنڈا پانی پلائیں، یہ ضروری تھا۔
तो हमने दुआ करना शुरू की, मैंने और मेरी बीवी। दुआ में अब मुझे पता था कि मेरी तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं, तो हम दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद एक छोटे साइज का फ्रिज मिले। और ये 98 की बात है, 1998 की। लेकिन किसी तरह से, कहानी मुख्तसर ये, किसी तरह से मुझे बिना पैसे दिए सिर्फ 1000 मैंने अदा किया, तो कोई पासबान मुझे मिला और लोग उसको कह रहे थे उसके नए फ्रिज के लिए, लेकिन पता नहीं कैसे उसने उसको नहीं दिया, वो फ्रिज मुझे मिल गया। और ये बड़ा फ्रिज था। अब जो बात बताने वाली है वो ये है, मैंने खुदावंद से छोटा फ्रिज मांगा था, मेरी जरूरत थी फ्रिज, और चूंकि मेरे पास वसाइल नहीं थे, मैंने छोटा मांगा। छोटा मैं ले ना सका, मुझे बड़ा मिला, छोटे से भी सस्ता। और मुझे वो जुमला आज भी मेरे कानों में गूंजता हुआ महसूस होता है, और मैं खुद भी वो किया करता। तो इस फ्रिज के पास जितनी दफा मैं जाता, उसको खोलने के लिए बेसाख्ता मेरे दिल से निकलता, खुदावंद तेरा शुक्र। मेरी बीवी ने एक दिन मुझे कहा उन्हीं दिनों में कि पास्टर साहब, मैं जितनी दफा फ्रिज को खोलने लगती हूँ, क्योंकि हमने नहीं सोचा था, हमने ये नहीं मांगा था, हमने छोटा फ्रिज मांगा था, हमारे पास उसके लिए वसाइल नहीं थे, लेकिन खुदावंद ने मौजूदा तरीके से बहुत कम पैसों से कहने लगी, मैं जितनी दफा फ्रिज खोलती हूँ मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। तो कमी का एहसास, बड़ी बरकत का मिलशान, जितनी दफा हम उसे देखते हैं हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। सो ये इस आयत में खास बात है जो मैं आपके सामने रखता हूं, और जो वजह है हमारी शुक्रगुजारी। सो आपने जो हवाला चुना वो कुलसियों में से 2 बाब और उसकी 7वीं आयत है, लेकिन 7वीं आयत जुड़ी है 6ठी आयत से। सो मैं 6ठी से शुरू करने लगा हूं, ध्यान से सुनिए। बस जिस तरह तुमने, और ये कुलसे के ईमानदार थे, लोग थे गैर अक़वाम में से, जिन्हें वो मसीह के पास लेकर आया था। अब ये गैर अक़वाम लोग पुराने अहदनामे में खुदा की कौम बनी इसराइल, लेकिन नए अहदनामे में मसीह के वसीले से सबको दावत दी गई। आप और मैं भी उनमें हैं। सो उसने कहा, बस जिस तरह तुमने, वो जो गैर अक़वाम थे, मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, सो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया था, और यहां से बात शुरू हुई थी, उसी तरह उसमें चलते रहो। तो ये मसीहों के लिए जरूरी है। कहां से मसीही जिंदगी शुरू होती है? यीशु मसीह से, उसे कबूल करने से। कहा, जिस तरह तुमने यीशु मसीह को, खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो। और आगे सुनिए, और उसमें जड़ पकड़ते रहो। किसमें जड़ पकड़ते रहो? यीशु। कबूल किया, यीशु में चलते रहो, उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। एक तो जड़ पकड़ते जाओ, नंबर 2 उसमें तामीर होते जाओ। और जिस तरह तुमने तालीम पाई, उसी तरह ईमान में मजबूत रहो। और आगे कहा, और खूब शुक्र गुजारी किया करो। ये फिक्रा बोलिए मेरे साथ, और खूब शुक्र गुजारी किया करो। क्या किया करो? कितनी? खूब। क्या करो? अब ये शुक्र गुजारी इस हवाले के मुताबिक किस चीज की? मसीही जिंदगी जुड़ी है यीशु मसीह के साथ। उसके बगैर ना मसीही जिंदगी शुरू हो सकती है, ना मसीही जिंदगी मुतवातर बढ़ सकती है, ना ही वो अपने मकाम तक पहुंच सकती है। सो यहाँ पालूस ने शुक्र गुजारी और खूब शुक्र गुजारी के लिए कहा, और बात की खुदावंद यीशु मसीह की। आशाम 4 बातें आपको याद दिलाना चाहता हूं जो यीशु मसीह के साथ जुड़ी है, और जिन्हें हम भूल जाए तो शुक्रगुजारी नहीं कर पाते। और अगर याद रखें तो हम मुसलसल
जिस तरह जितनी दफा फ्रिज को छूना पहुंचना तो शुक्रगुजारी करते थे। 4 बातें। लेकिन इससे पहले कि वो 4 बातें आपको याद दिलाऊं, पुराने अहदनामे में खुदा ने जब बनी इसराइल कौम को लिया तो उनको ईदें दी। सारी कुर्बानियां, सारी ईदें सिर्फ गुनाह से मुतल्लिक नहीं थी। कई ईदें शुक्रगुजारी की ईदें थी। 3 बड़ी ईदें शुक्रगुजारी की थी। 7 के करीब उनकी ईदें थी जो साल में मुख्तलिफ वक्तों पर आती, और उनमें से 3 ऐसी थी जिनका ताल्लुक शुक्रगुजारी के साथ जुड़ा हुआ था। और ये मकदस के साथ, ये कुर्बानी के साथ जुड़ा हुआ। और वक्त नहीं बताने का, वजाहत करने का, मगर बता दूं पुराने अहदनामे में मकदस से जुड़ी हुई तमाम बातें, उसके साथ जुड़ी हुई ईदें आने वाले वक्त में यीशु के साथ जुड़ी हुई थी, कुर्बानी से शुरू करके और तमाम तर ईद। सो किसी तरह से हर ईद जो पुराने अहदनामे में वो करते थे, वो आने वाले वक्त में यीशु के साथ जुड़ी थी और आने वाले वक्त में कलीसिया के साथ जुड़ी थी। मिसाल के तौर पर फसा उनकी एक ईद और कुर्बानी की गई। बर्रा लिया गया, बर्रे का लहू दरवाजे पर लगाया गया, बर्रे का गोश्त खाया गया। और फसा नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह ने फसा खाते वक्त कहा, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। तो पुराने अहदनामे की फसा नए अहदनामे की इशाए रुबानी। उनकी एक ईद थी जिसमें वो जब फसल उनको हासिल होती, जब फल उनको हासिल होते, तो वो फल और वो फसल पेंतिकोस्त के रोज लेकर आते काहिन के पास हैकल में, और काहिन उस फसल को, फूले को खुदा के सामने लहराया करता था, गोया वो उनकी तरफ से खुदा तक पहुंचती, खुदा उसे कबूल करता, उस फूले को बरकत देता और सारी बरकत फसल पर पहुंचती। नए अहदनामे में ये कलीसिया पर जब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ, खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर गया, तो बाइबल में लिखा है वो कैदियों को साथ लेकर गया, कुछ लोगों को जिंदा किया यीशु मसीह ने। मत्ती की इंजील के 27वें बाब की 51, 52, 53 आयत में लिखा है, और इफिसियों 4 में लिखा है यीशु मसीह ने आसमान पर लेकर। वो यीशु जो इस जमीन पर आपके लिए और मेरे लिए बढ़ रहा था, आसमान पर अब आपके लिए और मेरे लिए सरदार काहिन है। सो सरदार काहिन ने अपना लहू और इस छोटे फूले को खुदावंद के हुजूर में पेश किया। ये उसकी रूहानी बात है। सो पुराने अहदनामे की शुक्रगुजारियां यीशु से जुड़ी हुई, नए अहदनामे की शुक्रगुजारियां यीशु से जुड़ी हुई। और किसी और मौके पर लिखा हुआ है, तुम्हारी दरखास्तें, मुनाजात और शुक्रगुजारियां बाप के हुजूर में किसके नाम में पहुंचे? जी मेरे साथ रहिए, किसके नाम में पहुंचे? हम अपनी मिन्नत को यीशु के नाम में पेश करते हैं, अपनी दरखास्तों को, और लिखा है अपनी शुक्रगुजारियां यीशु के नाम में पेश करें। सो सब कुछ जुड़ा यीशु के साथ। आइए वो 4 बातें देखें। नंबर 1, क्यों मुझे शुक्रगुजारी करनी चाहिए? ज़बूर 139 1:40 में दाऊद खुदावंद की तारीफ करता है और वो याद करता है, खुदावंद जब मैं अपने आप को देखता हूं, जब मैं ये सोचता हूं कि तूने मुझे किस तरह पैदा किया, तो खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं। आमीन। देखिए सर, इस जमीन पर जानवर, हैवानात और फिर पानी के जानवर, लेकिन क्या आपको पता है इस जमीन पर कोई और जानदार जान रखने वाला है, चाहे वो दरख्त है, चाहे वो फूल पौधे, चाहे वो खूबसूरत परिंदे, कोई भी इंसान जैसा खूबसूरत नहीं है, कोई भी। तो आप और मैं एक वजह हैं शुक्रगुजारी की। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये शुक्रगुजारी सिर्फ इस बात की नहीं कि मैं किस तरह का बना हूं। वो जो पैदाइश की किताब के पहले बाब में लिखा है, मैं चाहता हूं जरा जल्दी से याद करें। और अगर
सिल्विया है इधर और स्टीफनस दोनों यहाँ ऊपर आ सकते हैं? या सिल्विया है इधर? स्टीफनस है? ये सिल्विया है। स्टीफनस है इधर? जल्दी जल्दी से आइए। मैं जरा बताना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब खुदा ने सब कुछ, यहाँ ऊपर आइए बेटे, जल्दी से ऊपर आइए। जब खुदा ने सब चीजें पैदा की, कितने दिनों में पैदा की? जल्दी से मेरे साथ रहिए, वो आपसे पूछ रही इनसे नहीं, कितने दिनों में पैदा की? 6 दिनों। और हमें याद है पहले दिन रोशनी, हाँ, फिर फिजा, फिर खुश्की, फिर इसके ऊपर पौधे दरख्त, फिर आसमान पर के चांद सितारे, उसके बाद परिंदे और जमीन समंदर के जानवर, और फिर छठे दिन खुदा ने किसको पैदा किया? जानवरों को। लेकिन अब बात आने लगी है आखिर की। जितनी भी चीजें खुदा ने पैदा की, किस तरह पैदा की? मुंह से कहा और वो सब हो गया। सब चीजें खुदा ने मुंह से कहकर बनाई। लेकिन अब बारी आई इंसान को पैदा करने की। क्या खुदा ने इंसान को मुंह से कहकर पैदा किया? मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने। क्यों आपको और मुझे अपने लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए? क्यों? ना सिर्फ इसलिए कि हम जीते जान हैं, सही सलामत है। कितने लोग हैं जो माजूर पैदा होते हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि हम सही सलामत हैं। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं उस पहले मौके को जब इंसान को पैदा किया। किसने पैदा किया सब कुछ? खुदा ने। वैसे जब हम खुदा कहते हैं तो फिर हमें ये नहीं सही पता चलता हम बाप बेटा और उनको किसकी बात कर रहे हैं। किसने पैदा किया सब कुछ? बाप ने। ओके, जब हम पुराना ऐतनामा पढ़ते हैं तो हमें इस बात की वजाहत नहीं मिलती, लेकिन नए ऐतनामे में लिखा है सब कुछ किसने पैदा किया। हाँ, लिखा है यूहन्ना के खत में, या यूहन्ना की इंजील में, इब्तिदा में ओके कलाम खुदा के, और जिसको कलाम का आपको पता ना वो कौन? यीशु मसीह। ओके, सो हम कहेंगे इब्तिदा में यीशु मसीह था और यीशु मसीह खुदा बाप के साथ था, और यही कलाम खुदा। ओके, और अगली आयत में लिखा है सब चीजें किसके वसीले से? उसके वसीले से, मतलब किसके? यीशु मसीह के वसीले से। और जगहों पर भी लिखा है, कुलसियों में भी लिखा है कि सब चीजें यीशु के वसीले से पैदा की गई। सब चीजें, सब चीजें। और वहां लिखा है यूहन्ना की इंजील में, कोई चीज उसके बगैर पैदा नहीं। जो चीज पुराने ऐतनामे में सिर्फ ये बताती है खुदा ने सब कुछ पैदा किया, नए ऐतनामे में जाकर लिखा है यीशु ने सब कुछ पैदा किया। अब सब कुछ किसने पैदा किया? यीशु ने पैदा किया, और उसने कहा और सब कुछ हो गया। अब ध्यान से सुनना, जब इंसान को बनाने की बारी आई तो देखे क्या कहा गया। उसको पैदा करने से पहले क्या कहा गया? आओ हम इंसान को किसकी? अपनी शबीह और अपनी सूरत पर बनाए। और कैसे बनाया? कौन बना खुदा की सूरत और शबीह पर? सिर्फ आदम नहीं, उसने कहा नर और नारी उनको बनाए। और अभी नहीं बनाया, लेकिन ये कहा, ये पहले मंसूबा बनाया। मेरे अजीजों, इससे पहले कि आप और मैं इंसान बनकर इस दुनिया में जन्म लेते, हमारा जन्म खुदा के ज़हन में हुआ। हालेलुया। हम इंसान खुदा की ज़हन की पैदावार। और साइंस आपको बताएगी, दुनिया के इल्म आपको ये बताएंगे कि ये दुनिया अचानक से बनी, और शायद पीछे जाते जाएं तो इंसान किससे बना है? बंदर, है ना? वो ये कहते हैं, मर्द को ये बारे में कहते हैं कि इंसान किससे बना है, और लेडीज किससे बनी है। ये दुनिया का कहना है, लेकिन बाइबल का कहना ये है कि खुदा ने इंसान को नर और नारी पैदा किया और अपनी सूरत पर पैदा किया। ये बाइबल का बताना है कि दोनों, बाइबल का कहना है कि दोनों नर और नारी, मर्द और औरतें खुदा की सूरत पर पैदा किए गए। हालेलुया। यही एक बहुत बड़ी हमारे लिए शुक्रगुजारी की बात है कि मैं खुदा की सूरत पर पैदा
किया गया। या छोटी बात नहीं। सो जब उनको नारी को नर को पैदा किया, खुदा ने अपनी सूरत पर पैदा किया। क्यों अपनी सूरत पर? पता है आपको? फरिश्तों की सूरत पर नहीं। ये इंसान को दिया गया बड़ा मकाम है। हम नहीं समझते ना अपनी कदर को ना दूसरों की कदर को, लेकिन जिसने हमें पैदा किया उसने हमें फरिश्तों की तरह नहीं, अगरचे फरिश्ते इंसान से ज्यादा जोरावर, ज्यादा जलाली, कुदरत वाले हैं, लेकिन फिर हमें फरिश्तों की सूरत पर पैदा नहीं किया गया। हम खुदा की सूरत पर पैदा हुए। क्या खुदा से कोई बड़ा है? तो किसकी सूरत? जो सबसे बड़ा आपको और मुझे पैदा किया गया। सो नर और नारी दोनों। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी बेटियों, इस दुनिया में पादरी साहिबान, लेडीज को वो मकाम नहीं दिया गया जो बाइबल ने दिया। और अफसोस के साथ कहने लगा हूं, मसीही मुआशरे में भी वो मकाम नहीं दिया गया जो लेडीज के लिए खुदावन ने खवातीन के लिए रखा है। उन्हें भी खुदा की सूरत, हमें अपनी बेटियों को खुदा की सूरत पर सोचने की जरूरत है। सो एक शुक्रगुजारी है, लेडीज जेंट्स दोनों खुदा की सूरत पर बने। अब आप चले जाइए, आप इधर रुकिए, आप इधर स्टीफनस, आप इधर रुकिए। मैं चाहता हूं आप जल्दी से इस बात को देखें कि खुदा ने इंसान को ना सिर्फ अपनी सूरत पर पैदा किया, उस पर जिससे बड़ा कोई नहीं, जिससे पाक मुकद्दस कोई नहीं, फरिश्तों की नहीं, लेकिन इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। जल्दी से बताएं कैसे पैदा किया? नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ, सीधे हो। कैसे पैदा किया? इस तरह ले, नहीं उल्टे नहीं, सीधे हो, और इस तरह से ले। कैसे पैदा किया? क्या लिखा है बाइबल? खुदा ने क्या किया? नहीं, कैसे पैदा किया? जमीन की। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है कैसे मिट्टी ली उसने। क्या उसने ये कहा मिट्टी मेरे हाथ में आ जा? हाँ, नहीं ना। कैसे, क्या किया? नीचे गया। क्या खुदा नीचे गया? क्या यीशु नीचे गया? सिर्फ बाइबल का खुदा ऐसा कर सकता है, सिर्फ बाइबल का खुदा, कोई और नहीं। हमारा खुदा नीचे आ सकता है और वो आया। कितना नीचे आया हम सोच भी नहीं सकते, उतना नीचे। जब उसको पहली दफा अपनी सूरत पर पैदा करना था तो उसने कहकर पैदा नहीं किया, ये खुदा की अपनी मर्जी, लेकिन शाहकार उसने जमीन की मिट्टी से इंसान को पैदा किया। मगर मैं चाहता हूं आप मेहरबानी से इसे याद रखें, सब चीजें हमारी शुक्रगुजारियां यीशु से जुड़ी हुई हैं। हम अभी आएंगे निजात की तरफ, लेकिन पहले जब पैदा किए गए तब भी तो वो आपकी खातिर और मेरी खातिर नीचे आया। और कितना नीचे? जमीन की मिट्टी ली, और फिर मिट्टी को अब कैसे उसने गीला किया? अगर हम यूहन्ना की इंजील को लें तो थूक से भी किया हो सकता है, लेकिन कोई पानी भी लिया जा सकता है। एनीवे, खुदावन ने इंसान को बनाया। हाँ, जरा सोचिए, क्या लगता है आपको कितना टाइम लगा होगा बनाने में? जल्दी से मेरे साथ रहिए। कितना टाइम? सीधा कितना टाइम? खुदा ने बड़ी मोहब्बत से बनाया। कोई चीज आप मोहब्बत से बनाए, टाइम लगता है? कितना टाइम लगा होगा? कुछ घंटे लगे होंगे क्योंकि प्यार से बनाया। हाँ लगे होंगे। वैसे खुदा को कोई जल्दी नहीं, हर चीज उसने एक दिन बनाई और अगले दिन बनाई। वो सब कुछ एक ही वक्त में बना सकता था, लेकिन उसने बड़े प्यार से इंसान को बनाया। और अब बारी आई जब इंसान मिट्टी का पुतला बन गया कि उसमें जिंदगी थी? कैसे आई जिंदगी? कैसे? क्या खुदा ने दूर से ऐसे किया? नहीं। क्या किया? कितना नजदीक, कितना नजदीक, कितना नीचे। और सिर्फ बाइबल का खुदा ऐसे कर सकता है। हालेलुया। सिर्फ आपका मेरा यीशु ऐसे कर सकता है। आपको और मुझे उसने अपनी सूरत पर बनाया, उससे बड़ा कोई नहीं। और उसने खुद मोहब्बत से ना सिर्फ बनाया, जब जिंदगी देने की बारी आई तो कह सकता था लाजर को कहा बाहर आ जा, उसको कह सकता था उठ जा, हाथ पकड़ के उठा सकता था, लेकिन लिखा है वो नजदीक आया। और कितना नजदीक? उसके नथनों में अपनी सांस में से सांस दी, अपनी जिंदगी में से जिंदगी।
पता है आपको, ये बदन और इस बदन के अंदर दौड़ने वाला लहू, इस बदन के अंदर चलता और इधर रुक, सांस, ये सब कुछ खुदा की दी हुई है, यीशु की दी हुई है। हमारी शुक्रगुजारी यीशु से जुड़ी है। ये पहली बात जो मैंने आपको बतानी थी। क्यों शुक्रगुजारी करनी चाहिए? शीशा दे के शुक्र करें कि आप ठीक ठाक हैं। अगर आप वाजबी हैं, खूबसूरत हैं, तो शुक्र करें, लेकिन सिर्फ इन बातों की नहीं, खूबसूरत और वाजबी चीजें तो और भी हैं। आप और मैं खुदा की सूरत पर हैं, ये देखिए। तो जब ये याद आएगा ना, तो आप खुदावंद का शुक्र करेंगे, और जब ये याद आएगा ना, खुदावंद ये सांस जो मेरे अंदर दौड़ रही है, ये तेरी दी हुई है, आप खुदावंद का शुक्र करें। लेकिन इंसान गुनाह में गिर गया, छोड़ दिया खुदा ने। क्या खुदा ने इंसान को छोड़ दिया? हाँ या ना? नहीं छोड़ा। और अब आप सुनिए कि कहानी मुझसे ये, इंसान को बचाने के लिए वो फिर नीचे आया या कितना नीचे? पहली दफा जब वो आया तो वो अल्लाही जात थी, लेकिन जब दूसरी दफा आया इंसान को बचाने के लिए, तो इंसानी जात बनकर आया। जरूरी था, बस जरूरी था। वो चाहता तो एकदम से सलीब से पहले छलांग मार के आ सकता था, वो लोगों से कह सकता था, लोगों मैं दुनिया का निजात दहिंदा हूं, मुझे सलीब पर चढ़ा दो, मगर नहीं। इंसान को बचाने के लिए खुदा ने कहां से इंसानी सफर शुरू किया? जहां से कोई भी इंसान शुरू करता है, मां के पेट से, और 0 टाइम्स। यीशु मसीह 9 माह मरियम के पेट में किसी भी बच्चे की तरह फिर जन्म लिया, और फिर 30 साल किसी भी नौजवान की तरह उन्हीं की गलियों में एक गरीब घर में यीशु ने परवरिश पाई और साबित किया इंसान को बचाने के लिए। बताऊं मैं आपको, हम सोच सकते हैं, हमें लगता होगा कि इंसान को बचाने का अमल बड़ा सादा और आसान और फौरन था। जी नहीं, जी नहीं। 9 माह पेट में और 30 साल इस दुनिया में उसने बसर किए आम इंसान की तरह। कोई ना मौजज़ा कर, एक आम इंसान की तरह उसने हर तरह की आजमाइश यीशु मसीह पर आई। लेकिन अब आई बात उसकी खिदमत शुरू करने की। कितनी देर खिदमत की यीशु मसीह ने? 3.5 साल। इंसान को बचाना आसान था? जी नहीं, चाहिए थे 3.5 साल। 30 साल आम इंसानों की तरह बसर करना, और फिर 3.5 साल। और फिर आई वो खास शाम जब इंसान को बचाने के लिए फैसला करना पड़ा यीशु मसीह को। क्या वो फैसला आसान था? जी नहीं। कितनी दफा यीशु मसीह ने कहा, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे, लेकिन नहीं। इंसान को बचाने के लिए यीशु मसीह को उस प्याले को पीना जरूर था, और वो प्याला खुदा के गजब का प्याला था जो गुनाहगारों पर और गुनाह पर उंडेला जाना था, और आपके लिए और मेरे लिए मरने की खातिर ये जरूरी था कि वो आपका मेरे हिस्से का प्याला पीता। इंसान को पैदा करना आसान है कि बचाना? पैदा करने में कितना वक्त लगा? मैंने आपसे पूछा था जब बनाया तो कितना वक्त लगा? थोड़े मिनट लगे होंगे। और कितनी, क्या पसीना बहा? उसमें क्या पसीना बहेगा? उस वक्त तो मौसम भी ठीक था, पसीना नहीं बहा। और फिर उसको जिंदा करने के लिए सांस में से सांस दी। लेकिन अब इंसान गुनाह में गिर कर लेट जाए, गुनाह में गिर के सीधा लेट। इंसान गुनाह में गिर के वहां जमीन के अंदर चला गया, और अब की बार इंसान को बचाने के लिए थोड़ा वक्त नहीं चाहिए था। 30 साल की वो उम्र और 3.5 साल ये जरूरी थे यीशु मसीह के। पेशन गोइयों में वक्त मुकर्रर है, ये खुदा का इंतजाम था। पैदा करना आसान था, बचाना आसान नहीं था। और यही यीशु मसीह जब बचाने के लिए आया, उस रात पसीने की जगह क्या बहा? यीशु मसीह का लहू बहा। उसी इंसान को वापस लाने के लिए पहले खुद इंसान बना, और उसको खबर में से निकालने के लिए कहां तक जाना जरूरी था? जहां तक
इंसान पहुंचा था। मेरे अजीजों, आपका मेरा बदन खुदा की सूरत पर बनाया गया। गुनाह ने इस तस्वीर को खराब किया। इस तस्वीर को फिर से ठीक करने के लिए जिसने पैदा किया वही आके उसको ठीक कर सकता था, कोई और नहीं आ सकता। कभी कभी सोचते यीशु क्यों आया, क्योंकि पैदा उसने किया था। हाँ, तो सिर्फ वही कर सकता था। और ऐसे ही होता है, जो कंपनी कोई चीज बनाती है वही कंपनी स्पेयर पार्ट्स भी बनाती है, आप उसी की खरीदते। सो यीशु मसीह ने पैदा किया, यीशु मसीह का आना जरूरी था। और अब की बात, इंसान को बचाने के लिए ज्यादा वक्त चाहिए था, फितरत की तब्दीली भी चाहिए था। पता नहीं हम कई दफा इस बात को समझ नहीं सकते, मैं समझा नहीं सकता क्यों जरूरी था यीशु मसीह कि तू एक इंसान की सूरत इख्तियार करता, बच्चे की सूरत इख्तियार करता। क्यों नहीं एकदम से इंसानी सूरत में सलीब के थोड़ी देर पहले आ गया और कहा कि मुझे सलीब पर लटकाओ? जी नहीं। पैदा करना आसान था, बचाना मुश्किल था। खुद खालिक के लिए 3 बार कहा अगर हो सके, और वहां यीशु मसीह का पसीने की जगह खून बहा। सलीब पर जब यीशु को लटकाया गया, क्या यीशु मसीह, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई दफा लोग कहते हो यीशु मसीह ने सलीब पर कितना दुख सहा। नहीं, यीशु ने अकेले नहीं सहा। यीशु मसीह के आने से 300 साल पहले सलीब की सजा शुरू हुई थी, तो बहुत से लोग सलीब पर लटके थे। यीशु मसीह के मरने के बाद, जीवने के बाद भी 300 साल तक सलीब पर लोग लटकाए जाते थे। तो यीशु का सलीब पर लटकाया जाना सिर्फ वो तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं थी। सलीब पर लोग जब लटकाए जाते थे भूखे प्यासे, वो सलीब पर कोई भी एक दिन में नहीं मरता था। दिन लगते थे मरने के लिए, हड्डियां तोड़ते थे, परिंदे आके नोचते थे। खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ 3 घंटे, 3 के 6 घंटे, यीशु मसीह 6 घंटे सलीब पर लटकाया गया। 9 से ना। खुद यीशु मसीह का एक रसूल जब उसको सलीब देने लगे तो कहा, मुझे सीधी सलीब मत दो, मुझे उल्टी सलीब दे दो। वो उससे भी ज्यादा तकलीफ दे थी। सो बात सिर्फ ये नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो यीशु मसीह के लिए, इंसान को बचाने के लिए बहुत तकलीफ दे था और उसके दिल में चल रहा था। इसलिए उसने बागे गतसमनी में कहा और शागिर्दों से कहा कि इतनी मुझे इस बात की परेशानी और तकलीफ हो रही है कि मौत तक नौबत पहुंची है, और यीशु ऐसे ही कुछ नहीं कह रहा। आपकी और मेरी शुक्रगुजारी बनती है। एक तो उसकी सूरत पर पैदा की, दूसरी बात, जब हमें बचाया गया तो उसने आसानी से हमें नहीं बचाया। बाइबल में लिखा है बहुत कीमत अदा की गई, लेकिन फिर खून बहा। किसका खून बहा? किसी जानवर का जी नहीं, यीशु मसीह खुदा के बेटे का खून बहा बचाने के लिए। अब की बार कितना नीचे, अब की बार कितना नीचे गया, कितना नीचे बचाने के लिए, जहां इंसान है कब्र के अंदर। और अब की बार थोड़ा दम नहीं, पूरा दम यीशु मसीह को देना पड़ा। इंसान को वापस, उठो बेटा, इंसान को वापस कब्र में से बाहर लाने के लिए, आपके मेरे मसीह को, खालिक को निजात दहिंदा बनने के लिए अब की बार थोड़ा दम नहीं, अपना पूरा दम देना पड़ा, तब जाकर आप और मैं बचे हैं। हालेलुया। ये काम यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए किया। तीसरी बात जल्दी से बता, सिर्फ हमें बचाया नहीं गया, हमें खुदा की सूरत पर पैदा किया, इंसान को दोबारा मसीह के वसीले से बचाया गया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, कुर्सियों में लिखा हुआ है कि इंसान को दोबारा खालिक की सूरत पर नया बनाया जा रहा है। वहां लिखा है यीशु मसीह में जड़ पकड़ते जाओ, यीशु मसीह में तामीर करते जाओ। एक शख्स, एक आदमी जो गुनाहगार होता है, गुनाह के बारे में लिखा है कि गुनाहगार इंसान गुनाह को बदी के कीड़े की तरह, बदी को जो खाता है, गंदगी को जो खाता है, इंसान बदी का वो कीड़ा है। लेकिन कहां एक बदी के कीड़े को खुदा ने, जिसे अपनी सूरत पर पैदा किया था, दोबारा अपनी सूरत बख्शी, लेकिन सिर्फ जिंदगी नहीं दी। खुदावंद यीशु मसीह में हम जड़ पकड़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह में हम तामीर किए जाते हैं।
یہ کام ہے جو آپ کے اور میرے اندر چل رہا ہے. مجھے صرف بچایا نہیں گیا. جس یسوع نے مجھے پیدا کیا, جس یسوع نے مجھے بچایا, وہ یسوع میرے اندر آ کر مجھے دوبارہ تعمیر کرتا ہے. ہلیلویا. ہمارا بدن کس کا مقدس ہے؟ جی بولیے دوبارہ سے. ہمارا مقدس, ہمارا بدن. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن خدا کا مقدس ہے؟ کون ہمارے بدن میں رہتا ہے؟ خدا کا پاک روح. بولیے میرے ساتھ, کیا کون رہتا ہے؟ خدا کا پاک روح. جب ہم کہتے ہیں باپ اور بیٹا اور روح القدس, وہ تینوں نے ایک خاص کام نجات کے لیے سنبھالا ہے. باپ کا اوورآل کنٹرول, یسوع مسیح کا ہمارے لیے کفارہ دینا, اور پھر خدا کا پاک روح کدھر آ کر رہتا ہے؟ کدھر آ کر بہنوں, کدھر آ کر رہتا ہے خدا کا پاک. اونچی بولیے, جلدی کریں. اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو اینڈ صاحب کل صبح بھی ہو سکتی ہے. جلدی بولیے, کدھر آ کے خدا کا پاک روح رہتا ہے؟ ہمارے اندر. کدھر آ کر بھائیو؟ اب بولیے میرے اندر. یہ بائبل کی بات ہے, پاسٹر شکیل نے کہا. میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور میں کہتا ہوں خدا, میں اور تو میرے اندر, تیرا پاک روح میرے اندر. میں خود سے یہ نہیں کر سکتا, مجھے پاک روح دیا گیا, مجھے یہ بخشش برکت عطا کی گئی. میرے عزیزوں, پہلے صرف خدا کی صورت پر پیدا کیا تھا, لیکن اب نجات دینے کی خاطر نجات دہندہ نے کیا کچھ کیا, اور اپنے روح کو میرے اندر ڈال دیا, جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سدا تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہارے اندر ہوگا. بنتی ہے تو اس کی شکر گزاری بنتی ہے. خداوند میں اس لائق نہیں, تھوک پھینکوں نہ ماں باہر تو خود مجھے اپنے تھوک سے نفرت ہوتی ہے خود. لیکن بائبل میں لکھا یہ خیال کہ خدا کا پاک روح میرے اندر رہتا ہے. سو بنتی ہے خداوند کی شکر گزاری اس بات کے لیے. ہر روز جب آپ اپنی گلیوں میں گھومتے ہیں, ہر روز جب اپنے کام پر جاتے ہیں, اپنے دوستوں کے بیچ میں ہوتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں ہم کون ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ میں کس کی صورت پر پیدا ہوا. ہم بھول جاتے ہیں مجھے بچانے کے لیے کون آیا اور کتنی قیمت دی. ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر بسا ہوا ہے. اسی لیے تو سچی شکر گزاری نہیں نکلتی. اگر یہ یاد رہے نا, ہر بار آنکھ کھولے, ہر بار آپ شیشہ دیکھیں تو فریج کو کھولنے جیسا ہوگا. سب سے پہلے منہ سے یہ نکلے گا, خداوند تیرا شکر. چوتھی بات, کس کی صورت پر پیدا ہوئے, کیسے اس نے دوبارہ ہمیں جیتا اور اپنا پاک روح ہمارے اندر ڈالا. ہم مسیحیوں کا اجر آسمان پر ہے. ہم اس زمین کے لیے نہیں بچائے گئے, ہم اس زمین پر تو بچائے گئے ہیں, ہم اس زمین پر تو پاک کیے جاتے ہیں. ہمارا وطن کدھر؟ آسمان پر. کہاں تک ہے, کہاں تک پہنچنا, کہاں اس گندگی میں گندی زمین پر پیدا ہوئے. اور ایک ایماندار مسیح میں آ کر افسیوں کے خط کو, افسس کی کلیسیا کو پالوس رسول لکھتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے ہیں. یعنی کہ ہم تخت پر بٹھائے گئے ہیں. آپ کے مسیح نے اب کی بار ہمیں صرف اس زمین پر پیدا کر کے نہیں رکھا. اب کی بار جب ہم بچے, اب کی بار جب اس نے اپنا پاک روح دیا ہمیں تعمیر کرنے کے لیے, تو اس لیے تاکہ وہ آئے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے. میرے بہنوں بھائیوں, آپ کا اور میرا مقام اگرچہ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے شروع ہوتا ہے, اگرچہ کسی نہ کسی گھر سے شروع ہوتا ہے, مگر وہ وہاں ختم نہیں ہوتا. کہاں پر اس کو جا کر ختم ہونا ہے؟ آسمانی مقاموں پر. کہاں تک جا کر کہاں پہنچنا ہے ہم نے؟ خدا کے تخت کے پاس. اور پھر تختوں پر بیٹھنے کی بات کی گئی ہے. سو میرے عزیزوں, کیا یہ چیزیں جو آپ سے اور مجھ سے جڑی ہیں ہم سے شکر گزاری کا تقاضا نہیں کرتی؟ کتنا مشکل ہے لوگوں کا دبئی کا. جناب نے کہا آپ دبئی گئے, پاسٹر صاحب دبئی گئے, آپ یورپ کے کسی ملک میں گئے ہیں؟ میں بھی دبئی تک گیا ہوں, لیکن ویسے میں نا وہاں جا سکوں, پر وہ بھی یورپ میں نہیں ہے, تھائی لینڈ. مشکل ہے نا دنیا کے کسی ملک میں جانا, لیکن آپ کا اور میرا مقام کدھر؟ آسمان. جس تخت پر مسیح بیٹھا, مسیح نے کہا جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں. بہنوں بھائیوں, بیٹے بیٹیوں,
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو لکھا ہے نا خوب شکر گزاری کرو. یہ جو خوب شکر گزاری ہے وہ جڑی ہے یسوع مسیح کے کام سے. 4 باتیں یسوع کے کام سے اور آپ سے جڑی ہیں. پیدا کیا اس نے, جی شکر کیجیے اس کا. اپنی صورت پر پیدا کیا, خدا کی شبیہ پر اس نے پیدا کیا, شکر کریں. اور دوبارہ اس نے اپنی قیمت دے کر آپ کو بچایا, شکر کریں. پھر اس نے اپنا پاک روح آپ کے اندر ڈالا آپ کو تعمیر کرنے کے لیے, آپ کو بنانے کے لیے. اگر ہم صرف تعاون کریں خدا کے ساتھ, آپ دیکھیں گے ہم روز بروز یسوع کی طرح بنتے جائیں گے. چوتھی بات, آپ کو اور مجھے آسمان پر پہنچنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم انسانوں کا خوب شکر گزاری بنتا ہے. کس کی شکر گزاری کرنی چاہیے؟ کس کی؟ یسوع مسیح کی. کس کی شکر گزاری؟ یسوع مسیح کی. سو میرے بہنوں بھائیوں, جی جائیے ان باتوں کو یاد رکھیے, اپنی زندگی میں خوب شکر گزاری کیجیے. خدا آپ کو بڑی بات. میں اور جگہوں پر جب جاتا ہوں تو جن بچوں کو تھوڑی خدمت کے لیے بلا تو میں نے انعام دیتا ہوں. سو ان کو میں 500 انعام دینا. ایکچولی یہ تینوں بچوں کو میں 1000 دینا چاہتا ہوں. ویسا نہیں آپ سے, اوکے میرے پرس سے آپ لے لیجیے گا. یہ 1000 ان تینوں بچوں کے لیے ہے اور میری طرف سے ہے. یہ تو دونوں بہن بھائی ہیں نا, زکئی جان کو ضرور بیچ میں سے دے دینا. دے دو گے کہ نہیں؟ اوکے یہ لو پکڑو. خدا آپ کے ساتھ.